गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। टू ब्लॉक्स ए एंड बी, दिस इज ब्लॉक ए, दिस इज ब्लॉक बी, of mass m and 2m, m and 2m respectively, are connected by a spring of force constant k. The masses are moving to the right with uniform velocity v each, with v. The heavier mass is leading the lighter one. The spring is of natural length in the motion. When both the block moving with the same velocity, in the question given that the spring length is natural length, means no compression, no extension. Block B collides head on with a third block C. So this is your C of mass m, and it is at rest. The collision being completely inelastic. Between B and C, the collision is completely inelastic. Determine the velocity of blocks at the instant of maximum compression of the spring. क्वेश्चन में दी हुई है मास ऑफ ए, मास ऑफ बी, mass of C, spring constant, initial velocity of V A and B वो दी हुई है. Collision is inelastic, completely inelastic collision. And when both the block B and A is moving to the right with velocity v, there is no compression or extension in the spring, means it is at its natural length. तो इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या मिल जाएगा? कंप्लीटली इनइलास्टिक है. इसका मतलब क्या है कि जब B और C कोलाइड करेगा तो B एंड C स्टिक कर जाएगा एक दूसरे से और साथ साथ मूव करने लगेगा. तो इस स्टेट में आ जाएगा. B and C will stick together and will move with the same velocity. So this new velocity we have taken as V prime after the collision. Because of this collision, the velocity of 2m will reduce, and with velocity of 2m and m, means B and C, both blocks are V prime, which will be less than V. So now what will happen? This assembly will move slowly. This assembly will move with slower speed than block A, because block A is still moving with velocity v. So due to this, the compression will start taking place in the spring, because this is moving slower than this. So spring will start compressing. Moment the spring will start compressing, spring force will start acting on this. So the assembly will start accelerating. There will be a stage when the velocity of both block A and B and C
becomes equal. So at that instant the compression will be maximum, because both this assembly and this one is moving with the same velocity. So means spring will also be moving with the same velocity. So there will no further compression or extension in this spring. इसलिए इसको इनिशियल कंडीशन में हमने दिखाया है, ये इंटरमीडिएट कंडीशन दिखाया है कि इंटरमीडिएट कंडीशन में क्या है, जब B एंड C जब कोलाइड कर गया तो दोनों साथ साथ V प्राइम वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर दिया, और फाइनली जब मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया तो उस समय तीनों ब्लॉक की वेलोसिटी सेम हो गई। तो आइए अब हम लोग कोलिजन पे कंसंट्रेट करते हैं। ये जो कोलिजन हो रही है बी और सी की, बी और सी को अगर हम लोग एक सिस्टम मान लेते हैं, सिस्टम ऑफ मास, तो सिस्टम ऑफ मास मानने से क्या होगा, जो बी और सी के बीच में जो कोलिजन फोर्स लग रहा है, that will become your internal force. And since spring is at its natural length, तो spring इस पे कोई force नहीं लगा रहा है, so there is no external force on this system of mass 2m and m, that is block B and C. तो इसका मतलब क्या है, F external is 0 है, if F external is 0 है तो क्या होगा, मोमेंटम आपका कंजर्व होगा। तो इनिशियल मोमेंटम ब्लॉक बी एंड सी सिस्टम, ब्लॉक सी को अगर एक सिस्टम लिया हुआ है हमने, हमारा ब्लॉक बी प्लस सी इज ए सिस्टम, तो इनिशियल मोमेंटम क्या था, 2m was moving with velocity v, initial momentum 2mv राइटवर्ड था, मास ये जो ब्लॉक सी है वो रेस्ट पे था, जीरो। तो फाइनल मोमेंटम क्या होना चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, मोमेंटम कंजर्व है, तो इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम के लिए हमने क्या मान लिया है कि दोनों अब साथ साथ v प्राइम से मूव करना शुरू कर दिया। दोनों साथ साथ स्टिक करके क्यों कर रहा है, क्योंकि कोलिजन कंप्लीटली इन इलास्टिक है। तो ये 2m प्लस m सिस्टम का मास हो गया, और ये दोनों आफ्टर कोलिजन v प्राइम वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इस इक्वेशन से हमें v प्राइम मिल जाएगा 2v/3। अब क्या हो रहा है कि जब पूरा अब हम लोग अगर इस कंप्लीट a प्लस बी प्लस सी को हम सिस्टम मान लें, अब हमारा सिस्टम ये हो गया। तो ये सारा सिस्टम फाइनली आफ्टर मैक्सिमम जब मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा तो वी सी के साथ मूव कर रहा है। तो फाइनल मोमेंटम क्या है, आपको मिल गया 2m प्लस m प्लस m, ब्लॉक इसका ब्लॉक ए, ब्लॉक बी
plus block B, block C plus block A. This is mass and Vc is its final momentum. अब A प्लस बी प्लस सी आपका सिस्टम है, तो इसमें जो कंप्रेशन की वजह से जो स्प्रिंग फोर्स काम करेगा, मैक्सिमम कंप्रेशन स्टेट की बात की जा रही है, जब स्प्रिंग फोर्स जो काम कर रहा है वो इंटरनल हो गया। ये आपका सिस्टम, तो स्प्रिंग फोर्स इंटरनल हो गया, तो यहाँ भी इस सिस्टम के लिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस स्प्रिंग के लिए एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है इस सिस्टम के लिए, तो मोमेंटम कंजर्व होगा। तो फाइनल मोमेंटम हमारा ये है, उसका इनिशियल मोमेंटम क्या था, बिफोर रीचिंग टू दिस स्टेज, इस कंडीशन में था, तो इनिशियल मोमेंटम आपका क्या था, 2m प्लस एम वी प्राइम प्लस मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम प्लस ब्लॉक ए का मोमेंटम। ये इनिशियल मोमेंटम थी जब इन तीनों को मिलाकर हमने एक सिस्टम मान लिया था। एंड व्हेन द मैक्सिमम कंप्रेशन happened, all the masses, all the blocks A, B and C are moving together, तो उस समय फाइनल मोमेंटम ये था। तो ये जब एक्सटर्नल फोर्स जब जीरो है तो इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू योर फाइनल मोमेंटम। तो आइए हम लोग इसको, ये हम लोग 2m m प्लस m 4m इंटू वी सी हो गया, यहाँ पे 3m v प्राइम प्लस m v m सारे से कैंसिल हो जाएगा। v प्राइम क्या है, v प्राइम हमने यहाँ निकाला हुआ है, 3 इंटू 2v बाई 3 प्लस v, so this is 3v, so vc will be 3 by 4v. This will be your answer. All the blocks will be moving with the same velocity at maximum compression, because for further compression or extension there should be relative motion between B and A, but all three started moving with the same velocity, so there will not be any compression further. So this is the state of maximum compression. तो आपको स्टेट ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन पे तीनों का तीनों ब्लॉक 3/4v से मूव करेगा। इसको डिफरेंट वे में भी आप सोच सकते हैं। इस वे में आप अगर सोचिए, आपको इसकी जानकारी है, कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है और उसकी वजह से दोनों साथ साथ आफ्टर कोलिजन बोथ विल मूव टुगेदर, ये आपको पता है। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं स्ट्रेट अवे कि आपको ये साथ में मूव कर रहा है, और इस स्टेज को हम समझ रहे हैं, इस स्टेज को हम समझ रहे हैं कि जब दोनों मैक्सिमम कंप्रेशन का स्टेट वो होगा जब बी सी एंड ए ऑल थ्री विल मूव टुगेदर विद द सेम वेलोसिटी। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, आप यहाँ डायरेक्ट भी, इनिशियल मोमेंटम क्या है 2m इंटू वी ब्लॉक बी का प्लस m इंटू वी, फाइनल मोमेंटम क्या है 2m प्लस m 4m इंटू वी सी। So Vc will be 3/4v. In one line also you can
solve this problem. But the thing is, you should be very careful in understanding the whole concept behind it. यहाँ पे हमने क्या किया, इनिशियली तीनों को हमने एक सिस्टम ले लिया, तो जो भी इसमें इसमें और इसमें इंटरैक्टिव फोर्स होगा वो इंटरनल फोर्स हो जाएगा, इंटरनल फोर्स हो जाएगा। तो इंटरनल फोर्स कंसिडरेशन में नहीं आएगा, आपको एफ एक्सटर्नल जीरो होगा। तो एफ एक्सटर्नल जीरो होगा तो इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम जो भी है वो ये है, और उसका जो फाइनल मोमेंटम जो आ रहा है एट मैक्सिमम कंप्रेशन ये है। ये दोनों इक्वल होगा, वहाँ से भी डायरेक्ट निकाल लेंगे। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं।